Good morning, dear students. Standard 11 Science Physics, Chapter number 7 System of the Particle are System of the Particle and Rotational Motion. System of the Particle and Rotational Motion. Chapter number 7. 1 to 6 chapter हमने क्लियर किए थे. Today we have start chapter number 7. Now today introduction. पूरा चैप्टर रिजिड बॉडी पे है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिजिड बॉडी? तो ideally a rigid body in a body with a perfectly defined and unchanging shape, and the distance between two particles remains constant, and such a type of body is called rigid body. Ideally a rigid body is a body with a perfectly defined and unchanging shape. The distance between all pairs of particles of such a body do not change. Such type of body is called rigid body. Now, center of mass. First topic is center of mass. On x-axis, two particles are placed on the x-axis. Here mass of the particle is m1 and m2, and the position vectors are x1 and x2 respectively. Let's consider center of mass from origin at x distance. So let the distance of two particles be x1 and x2 respectively from some origin O. m1 and m2 and two masses of two particles. So center of mass of the system is that point C. X is equal to m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. If two particles are choose on the y-axis, तो सेंटर ऑफ मास आपको कहाँ पे मिलेगा? y-axis पे. तो आपको फॉर्मूला क्या लिखना है? y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. Let's consider suppose mass of the particles m1 and m2 both are same. So x is equal to mx1 plus mx2 divided by m plus m2m. mm कट करो तो x is equal to x1 plus x2 by 2. x is equal to x1 plus x2 by 2. सपोज यहाँ पे हमने टू पार्टिकल्स एज्यूम किए. अब यहाँ पे सपोज nth पार्टिकल्स है, तो इफ वी हैव nth पार्टिकल ऑफ मास इज m1 m2 m3 up to mn, and the position vectors is x1 x2 x3 up to xn, and y component is y1 y2 y3. So center of mass of the particles of the system is given by x is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus up to mn xn divided by m1 plus m2 plus m3 up to mn. So is equal to sigma mi xi divided by sigma mi, total mass of the system of the particle. ऐसे आप y component में भी लिख सकते हो. y component भी ये आप लिख सकते हो. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिग्मा एम आई एक्स वाई आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स, हमने दो पार्टिकल के लिए पहले बात की. ये nth पार्टिकल के लिए. अगर थ्री पार्टिकल्स के लिए है तो x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3. y कॉम्पोनेंट के अंदर m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. इसका दूसरा फॉर्म लिखना है तो हम सिग्मा दे दे, सिग्मा एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एम. वाई कॉम्पोनेंट के लिए सिग्मा एम आई वाई आई बाय कैपिटल एम. अगर थ्री कॉम्पोनेंट्स है तो जेड भी आएगा, एम आई जेड आई बाय कैपिटल एम. Now first exercise 7.1. Give the location of the center of mass of the sphere, cylinder, ring and cube.
काफ़ी सारे सेंटर ऑफ मास इज वेरी इंपॉर्टेंट in our physics. Center of mass depends on shape of the body and mass distribution. Center of mass, position of center of mass of the body is depends on shape of body and mass distribution. सपोज यहाँ पे स्पीयर की बात करें, अगर सॉलिड स्पीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? एट द सेंटर एंड इनसाइड द मटेरियल. ये ध्यान रखना. जैसे कि अर्थ इज़ अ परफेक्टली सॉलिड स्पीयर, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? सेंटर पे, बट इनसाइड द मटेरियल. लेकिन अगर हम होलो स्पीयर की बात करें, फुटबॉल, तो वो होलो स्पीयर, तो उसके अंदर सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? एट द सेंटर बट आउटसाइड द मटेरियल. जैसे हम रिंग की बात करें, तो ये रिंग का सेंटर कहाँ पे है? एट द सेंटर बट आउटसाइड द मटीरियल. मटेरियल से तो बाहर ही है. ऐसे ही यहाँ पर अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करें, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? एट द सेंटर एंड इनसाइड द मटीरियल. बट अगर होलो सिलेंडर है तो एट द सेंटर बट आउटसाइड द मटीरियल. ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सेंटर ऑफ मास नॉट परफेक्टली एट द सेंटर, थोड़ा नीचे आता है यहाँ पर, सेंट्रॉइड. तो इसीलिए हम लिखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ बॉडी एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन. जिस साइड मास ज़्यादा होगा उस साइड सेंटर ऑफ मास होगा. सपोज अर्थ एंड सन, वी नो दैट मास ऑफ सन इज ग्रेटर देन मास ऑफ अर्थ. ये दोनों को हम एक लाइन से ज्वाइन करें, तो ये जो सिस्टम है अर्थ और सन का, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? नियर टू द सन. नियर टू द सन. वाई? बिकॉज मास ऑफ सन इज ग्रेटर देन मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ सन कितना होता है? 2 इंटू 10⁻30 kg एंड मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg. मास ऑफ सन 2 इंटू 10⁻30 kg, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg. मीन्स मास ऑफ सन इज ग्रेटर देन मास ऑफ अर्थ. तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? नियर टू द सन. जिस साइड ज़्यादा मास होगा उस साइड सेंटर ऑफ मास होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.1. फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 particles at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particle are 100 gram, 150 gram and 200 gram. यहाँ पे 100 ग्राम है, यहाँ पे 150 ग्राम है और यहाँ पे 200 ग्राम है. इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड सेम होगा. कितनी लेंथ? 0.5 मीटर. तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास. मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल m1, m2 and m3 आर गिवन 100 to 150 and 200. अब हम 1 by 1 पोजिशन वेक्टर लिखे. पोजिशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल ओरिजिन 0 0. पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ सेकंड पार्टिकल, तो ये कितने डिस्टेंस पे है? 0.5. ऑन विच एक्सिस? एक्स एक्सिस, तो y कॉम्पोनेंट 0, x कॉम्पोनेंट 0.5. थर्ड पार्टिकल की बात करें तो 0.5. इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होगा? 60. तो 0.5 cos 60, 0.5 sin 60. cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 √3/2. तो 0.5/2 0.25 एंड 0.25 √3 मीटर. तो आपको टोटल 6 वैल्यू मिली, m1, m2, m3, r1, r2, r3. अब हम x और y कॉम्पोनेंट लिखे तो x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3. वैसे y कॉम्पोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3. चलो m1 m2 m3 तो यहाँ से हम लिख देंगे x कॉम्पोनेंट. व्हाट इज x1? x कॉम्पोनेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज 0. x component of second particle 0.5.
एंड एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ थर्ड पोजीशन वेक्टर इज 0.25 डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन। वैसे y के लिए y कॉम्पोनेंट इज 0, सेकेंड का y कॉम्पोनेंट 0, थर्ड का y कॉम्पोनेंट 0.25√3। तीनों के अंदर कैलकुलेशन करें दोनों साइड, तो यहाँ पर 0, 150 इंटू 0.5 75, 200 इंटू 0.25 50 डिवाइडेड बाई टोटल 450, यहाँ पर 50√3 डिवाइडेड बाई 450, तो आंसर आएगा एक्स कॉम्पोनेंट 5/18 मीटर एंड 1/3√3 मीटर। These are x and y component of the center of mass. ये था एग्जाम्पल 7.1।